morning to one and all. Dosto, it's a very good principle that we are inculcating step by step to be regular in the yoga abhyas, because yoga is an anushasana which has to be done on the regular basis, है ना? एक कोई भी अच्छी हैबिट अगर हमें लंबे समय तक ले जानी है, then it is required to have a consistency, dedication, passion and enthusiasm. तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को बहुत ही अच्छे मन के भावों के साथ, with the utter enthusiasm for the upcoming different parts which are going to uncover in coming time. Let us start. Sitting comfortably in the Sukhasana, where both the feet are cross-legged, दोनों हाथों को अपान मुद्रा में रखेंगे. Let us ensure the middle and the ring are being pressed by the thumb. आंखें बंद करते हैं. चेहरे पर एक हल्की मुस्कान शरीर के रोम रोम को पुलकित करती हुई. भाव करें कि आपके सामने सूर्य उदीयमान हो रहा है. Visualize sun shining in front of your eyes, and we are absorbing its sun rays on the bare skin. Let us take a deep, long breath in, and we will start. Om Bhurbhuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urva Arukamiva Bandhanat Mrityor Mokshiyamamrutat. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Patanjalim Pranjaliranatosmi. Om. Great. Let us rub both palms together. चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से उस ऊष्मा को महसूस कराते हैं. And let us open for the session to start. दोस्तों, कहा गया है कि हमारी भारतीय परंपरा में अपने आप बहुत सारे नुस्खे बताए हैं, जिससे कि हम अपनी श्वास संबंधित, कास संबंधित, मेद मतलब एक्सेस ऑफ फैट संबंधित इन सभी विजातीय द्रव्यों को दूर करने के लिए एक प्रॉपर लाइफस्टाइल अपनाने का एक प्रॉपर मीडियम या फिर यूं कहें तो मैनुअल मिले. सो वी आर गोइंग टू अनकवर ऑल ऑफ देम बट विथ स्टेप बाय स्टेप. फर्स्टली, जैसे कि मैंने बताया था क्लास में, दैट शंख अपने आप में बहुत अच्छा टूल है टू इम्प्रूव आवर चेस्ट लंग कैपेसिटी, right? So it just imitates, or like medical system has imitated this process of physiological importance being done with respect to using spirometer. तो जब हमारे हाथों में ये दिव्य साधन है तो हम क्यों स्पायरोमीटर यूज करें?
So let us ensure that we are now learning this tool to use. We have to hold it such that we are able to properly allow air to pass through the small notch which is available. और इस अभ्यास को करने से पहले एक पूर्व तैयारी होती है, जैसे है ना, तो हवा को रेवर्बरेट कराना है in between our two lips. What it does is it allows our internal mouth area, mouthpiece to get ready with this process. Secondly, जैसे कि इसका significance है with respect to improving our cognition level and improving our lung respiratory system, it is also said that अगर हम इस अभ्यास को सुबह सवेरे करते हैं या फिर जैसे यह समय है इस समय करते हैं तो ये शुभ भी माना जाता है. शुभ किस पर्सपेक्टिव से? It is known that this sound energy is known to purify the energy around. Right? Every energy has got its own significance. The sound energy being generated through the microphone, that is shankh, kaunj जिसको कहते हैं, it is not only allowing our physiological system to get clean, but the surrounding area to also get vibrant with the positive energy. So let me begin. तो आगाज हो गया है कक्षा का, शुरू करते हैं. The first section. Before I begin, I would want to know how many have the conch with them. और किसने किसने बजाया? सर ने बजाया. Yes. शोभा मैम, then राजीव सर. आभा जी आपके पास नहीं है? सुमित जी, आभा जी not there? है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है. बजता है? Okay, good. All right. माधवी जी, अच्छा माधवी जी बजा रही है. Good, very nice. Who else? गुड़िया जी नहीं लाया आपने अभी तक? लाया है? चलो बजाइए. Let me unmute whoever has got in a few moments. Just भी है, जल्दी से ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए एंड यस स्टार्ट. नहीं बजता है मेरे से. नहीं बजता है. देखो, जब हम अलाउ प्रैक्टिस से होगा. पहले तो राजीव सर को भी नहीं होता था, बट अब होने लगा. पहले शोभा मैम से भी नहीं होता था, पर अब शायद शोभा मैम ट्राई करिए, होता है क्या अभी? ट्राई. यस, ट्राई बट डोंट क्राई. मैं ट्राई करूं? हाँ कर लीजिए माधवी जी. यस. Good. Yes, really nice. Who else? Okay, तो इस अभ्यास को यूज करने से बिल्कुल मत कतराएं, बिकॉज जब आप खुद अनुभव करोगे तब आप पता चलेगा. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. So fine, thank you so much. Yes, सभी ने जिनके पास भी था अच्छा प्रयास रहा. Yes. Fine, let us get started with the next. So जैसे कि मैंने बताया था, हमारे योग में there are several limbs, out of which षट्कर्मणाम शोधनम चैव आसनेन भवेत् दृढ़म मुद्रया स्थिरता प्रत्याहारेण धीरता प्रत्यक्षम च ऐसे बहुत सारे हैं. बट जिसमें से हमें अभी पहला पार्ट जो करना है वह है शोधनम. कौन किससे? षट्कर्मणाम शोधनम चैव. षट्कर्म से शोधन होता है. षट्कर्मों में 6 कर्मों में से पहला हम टारगेट कर रहे हैं, दैट इज द नेति क्रिया. नेति कहाँ गया है? नासा ही शीर्षोद्वारम. नासा ही शीर्षोद्वारम. सो हमारे ऊपर वाले फ्लोर तक अगर हमें क्लेंजिंग करनी है, देन माध्यम यही 2 द्वार है. सो इन 2 द्वारों को अच्छे से रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट? सो देयर आर सेवरल टेक्निक्स, जिसमें से नीति क्रिया के अपने आप में अलग अलग पहलू है. डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंग्रेडिएंट यू पुट इनसाइड, इट हैज इट्स ओन रेलेवेंस. जैसे कि हमें पता है वात, पित्त, कफ, ऐसे 3 मेजर दोषास है.
राइट, त्रिदोष है, उनमें से अगर जिसको भी वातज संबंधी रोग है या फिर पित्तज संबंधी रोग है, उनको दुग्ध नीति का बताया है। दुग्ध नीति मतलब जैसे लास्ट संडे हमने किया था विद द वाटर, सॉल्टी वाटर इनफैक्ट, तो दुग्ध जिसको बहुत पित्तज है उनके लिए घृत, घृत नीति कहा गया है, मतलब क्रॉनिक पित्तज समस्या जिसको है। फिर जिसको कफज संबंधी रोग है उनको सरसों के तेल की नीति या फिर जल नीति। सरसों के तेल की नीति बहुत जलती है, जैसे आपने अगर नॉर्मल नाक में डालोगे यू विल फील दैट स्ट्रिंजेंट इफेक्ट, बट रिजल्ट वेरी इमीडिएट। मतलब ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद इज ऑलवेज स्लो स्लम्बर, बहुत आराम से उसका रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन टाइम टेस्टेड रेमेडीज व्हिच आर नोन टू गिव अ वेरी वेरी फिनोमिनल रिजल्ट। सो सरसों मतलब थोड़ी सी ल्यूकवार्म सरसों के तेल की भी नीति होती है, बट वी आर गोइंग टू डू द वंस व्हिच इज इन जनरल, बिकॉज़ हम अच्छे खासे क्राउड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो वी विल डू इट ऑन द जनरल बेसिस। सूत्र नीति is also another technique. Now जैसे हमने जल नीति समझा था, जल नीति लास्ट संडे हमने किया, बहुत अच्छे से हुआ, right? It was a very natural process allowing the salty water to go from one side to the other side. But किसी किसी को अगर पॉलिप्स बड़े हो, हड्डी बड़ी हुई नाक में, है ना, anybody having this issue, हड्डी बड़ी है ना, पॉलिप्स हुआ है, raise your hand if you have so, nobody, right? तो but फिर भी आपके किसी को है क्या? Just let me confirm. All right, fine. तो जैसे मैं बता रही थी, हड्डी अगर बड़ी है तो भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, एंड वी फॉल प्रे टू स्नीजिंग, कॉन्स्टेंट स्नीजिंग, सीजनल चेंजेस के कारण भी स्नीजिंग, नाक बंद होना, शिकायत, एनीबॉडी? यस। सो इस कंडीशन में सूत्र नीति बड़ी काम आती है। तो जैसे मैंने कल के ऑडियो मैसेज में बताया था, सूत्रम वित्तस्ति सुस्निग्धा नासा नाले प्रवेशयेत, तो सूत्र नीति का विवरण है सुस्निग्ध होनी चाहिए। सुस्निग्ध क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो चिकनाहट से अंदर से बाहर आ पाए, नहीं तो डिफिकल्टी है। बट वो सूत्र भी हम नॉर्मल कपड़ा होता है, दैट वी कैन नॉट इंसर्ट इनसाइड अनलेस एंड अनटिल इट इज लिटिल हार्ड, सो उसको मोम से थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है, एंड दैट हैज टू बी ब्रॉट इनसाइड। बट यूजुअली उसके साइज थोड़े से बड़े आते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द स्मॉल साइज्ड वन इन अदर स्टेट्स एक्सेप्ट हरिद्वार। हरिद्वार में अपनी ड्रॉलिया एक दुकान है, वहां पे आपको बहुत 3 नंबर की बहुत स्मॉल वाली आएगी, 3, 4, 5 नंबर के आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नॉस्ट्रल टाइप यू कैन चूज द वन। बट जो इन जनरल साइज है सबसे स्मॉल 3 नंबर, तो ऐसे ही सूत्र नीति भी आती है, आपको वो हरिद्वार में मिल जाएगी। मतलब आप हरिद्वार में सोच लीजिए 10 रुपए में मिल जाती है, सो ऑनलाइन पता नहीं कैसे आएगी। तो आई थॉट लाइक रबर नीति ही कर लेते हैं। रबर नीति आपको फार्मेसी में किसी भी औषधि दुकान में मिल जाती है। नाउ दिस रबर नीति इज टू बी डन इफ यू हैव अकम्प्लिश्ड जल नीति प्रॉपर्ली, है ना, तो वो एक नेक्स्ट लेवल है। एंड अनदर थिंग, जो रबर नीति है, रबर नीति का मेन मकसद यही होता है कि हम अपने पैसेज को क्लीन करें। बट एज आई मेंशन, सूत्र नीति में मेजरली मेंशन किया गया है कि जो हमारे छोटे छोटे फ्लेगम पार्ट्स है, म्यूकस लाइनिंग्स है, वो सारे उसमें अटैच हो जाते हैं कपड़े में, और फिर वो और अच्छे से क्लीन होके बाहर आता है, मतलब नाक क्लीन होके सूत्र बाहर आता है। बट दैट कैन नॉट बी डन विद दिस बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ रबर, है ना। तो इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि पूर्व तैयारी है सूत्र की। अगर आपको जैसे सूत्र अच्छा खासा मिल जाता है अपनी साइज का, छोटा सा मतलब पतला सा, तो मुझे जरूर बताइएगा, देन वी कैन डू दैट। हाउएवर जो बिगिनर्स है उनको स्टार्टिंग में शायद लग सकता है कि नाक में खून आया, ऐसा क्यों होता है? हमारी नासिका में बहुत सारे छोटे 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 नर्व्स होते हैं, बट व्हेन वन बाय मिस्टेक अगर आप असावधानी पूर्वक कर रहे हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बट इतनी भी खतरनाक दुर्घटना नहीं है ये, क्योंकि आप अगर नॉर्मल फिर नाक में घी डालोगे या फिर बादाम तेल डालोगे, इट विल बी ऑल फाइन। इट्स जस्ट दैट कोई कॉम्प्रेस होगी नर्व तो वो आता है, बट इट इज वेरी रेयर। अगर आप ध्यान से करोगे then it will be very easy like a cakewalk. Okay, so before we
begin, let me first allow it to be done with the Jalaniti. Now this is supposed to be requiring a moist environment. इसीलिए मैंने कल आपको नाक में घी या फिर बादाम तेल डालने को कहा था. घी भी हम यूज कर सकते हैं, ल्यूकवम होना चाहिए थोड़ा सा, है ना. पर वो घी कौन गरम करेगा सेपरेटली, इतना सा घी, तो इसलिए बादाम तेल ही मैंने बताया था. बाकी आप चाहे तो ल्यूकवम घी भी यूज कर सकते हैं. जिनको बहुत ज्यादा स्नीजिंग प्रॉब्लम है या फिर यूं कहे तो सीजनल फ्लक्चुएशंस के कारण नाक बंद होना, एनीबॉडी हैविंग दिस इशू करंटली, नाक बंद होना या फिर आभा जी, ओके नॉट हैविंग, ओके फाइन, हैविंग. सो अगर ऐसे इश्यूज है, इन सच कंडीशंस अणु तेल एक आता है. अणु तेल भी पतंजलि का ही प्रोडक्ट है. It has got several ingredients in it which is supposed to be allowing our nasal passages to clean more better, allowing cough problems to get rid of. Okay, बहुत ज्यादा हो गया. So we'll start. जल नीति के लिए रेडी हो जाते हैं. Allow yourself to make a decoction जो कि थोड़े से थोड़ा सा खारा होना चाहिए. So first we will begin with the Jalaniti to start. Allowing water to be comfortably normal, जो आप सहन कर पाए, जितना आप सहन कर पाए. Okay, and then नमक स्वादानुसार. यहाँ पे स्वाद नहीं आएगा, इट्स काइंड स्वाद भी है, मतलब आंखों के आंसुओं जितना स्वाद होना चाहिए, so that it is comfortable enough for you to take it inside. Okay, so we are done. How many are ready today with this? Deepika ji, Rohit ji, Abha ji is already started. Yes. Okay, good. Anybody newly doing? मैं कल तो मतलब last Sunday तो किया था ना सब. Okay, माधवी जी, yes. क्या हुआ? One second. One second. Yes, बताइए माधवी जी, क्या कह रहे हो? ये सॉरी, आप पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं क्या? मैंने पिंक सॉल्ट से बनाया. पिंक सॉल्ट डाल तो सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, मैंने वो बनाकर रखा. क्लीन होना चाहिए. आई होप इट इज लाइक प्रॉपर क्लीन. ऐसे जो समुद्र से डायरेक्ट. हाँ नहीं, हाँ ठीक है, क्लीन है, पूरा मेल्ट हो गया है. हाँ, क्यों क्लीन होना चाहिए? बिकॉज वो डस्ट पार्टिकल्स फिर अंदर ना जाए. और थोड़े बहुत रॉक सॉल्ट में या फिर पिंक सॉल्ट में थोड़े बहुत होते हैं, अगर वो प्रॉपर क्लीन ना हो. जैसे सिंगापुर में तो शायद आपको क्लीन ही मिलेगा. तो as mentioned prior, हमारा पोजीशन उपड़ू होना चाहिए. उपड़ू पोजीशन में एब्डोमिनल पार्ट कॉम्प्रेस होता है और हम अच्छे से कर पाते हैं. अगर इस कंडीशन में अनकंफर्टेबिलिटी है, you can even stand and do the process. So let me start. हाँ, another thing, before we even start off, check करना कि आपकी कौन सी नासिका ओपन है. Just for those who are beginners, यूजुअली होता ये है कि कोई एक नासिका अगर खुली है तो इजीली पैसेज होने में हेल्प मिलती है. अनदर थिंग, अगर आप मान लीजिए आपकी नासिका बंद है, करंटली ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अगर बंद है, देन अलाउ योरसेल्फ टू डू सर्टेन मसाज ओवर द साइनस पॉइंट्स. Then this point, and then do. You will open up your nostrils in the way through the process itself. Na? So
you're done, keep the tumbler aside and allow yourself to exhale and exit the water, whatever is percolated inside. हाथ के कार्टिलेजेस को बंद करने का मेरा मेन मकसद यही है, अगर आप एक साइड से करते जिनका हो गया है वो शशांकासन में लेट के एक्सहेल करके एक साइड से एक्सहेल आउट करके नाक में जो भी पर्कुलेटेड वाटर है उसको निकालिए। इसी प्रोसेस को हम दूसरे के रूप में भी कर सकते हैं, शीरिंग जिसको कहा जाता है। आप मतलब आप जो भी कॉन्सेंट्रेट धारोष्ण माने कच्चा दूध थोड़ा सा गुनगुना करके हाफ वाटर एंड दूध की क्वांटिटी में मिक्स करके फिर वो यूज करते हैं। दैट इज इन केस अगर आपको ज्योति बढ़ानी है या फिर if we want to specifically get rid of anything with respect to the eye problems. However, जिसको भी chronic ear eye issue है, surgery वगैरह वैसे complications है, then नहीं करना चाहिए this practice, okay? क्योंकि pressure आता है, कपालभाति होती है, तो नहीं करना है। Now let us ensure that we exhale out. जिनका हो गया है वो कपालभाति करेंगे। कपालभाति हमने प्रीवियस बताई है, राइट? हाँ, बिल्कुल सही है मोना जी। जब आप अलाउ करते हो, व्हेन यू अलाउ द वाटर टू पास थ्रू, उस दौरान मुंह खुला ही रहना चाहिए एंड यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली। फेशियल मसल कोई टाइट नहीं रखने, आराम से अलाउ योरसेल्फ टू डू द प्रोसेस वेरी स्मूथ। व्हेन जितना हम सहज रूप से करेंगे उतना ही सहज रूप से उसका इफेक्ट हमें मिलने लगेगा। जितना अगर आप कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, हमारे नर्व्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इट वुडंट हैपन बेटर एज हाउ वी वांट, राइट? सो सभी बैठेंगे अच्छे से। कुछ समय के लिए कपालभाति। ओके, fine. So till the time you are doing Kapalbhati, मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी to do the रबर नेति क्रिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमें रात को सोने से पहले नाक में बादाम तेल की 2 से 4 बूंदें डालनी होती है, और अभी प्रैक्टिस के पहले भी डालनी है। जब फील हो कि गले तक उतर गया है बादाम तेल, and then you can turn over आराम से and get back. Fine. So मेरी नीति कहाँ है? Yes. This is supposed. Anybody having any issue, problem with respect to Jal Niti? Put your questions underneath. Okay. हाँ. Till then, we will get to do the प्रोसीजर। तो क्या करना है, कुछ बूंदे तेल की लेके अच्छे से रबर को कवर कर लीजिए ताकि वो बहुत ही स्मूथली अंदर जाए। ये भी एक नेचुरल मतलब इट डजंट कॉस्ट यू सो मच ऑफ एफर्ट,
बिकॉज नेचुरली हो पाता है जैसे ही पानी गया था। बस फर्क इतना है कि इस अभ्यास में अनलाइक प्रीवियस वन, जल नीति में हम एक से दूसरे में डालते हैं, नाक से बाहर निकालते हैं। यहाँ में हम एक नाक से दूसरे नाक में बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि मुंह से बाहर आएगा। ओके, सो या नाउ अगर ये नाउ यू मस्ट बी विजुअलाइजिंग, मैंने जिस आंख से किया था या फिर जिस साइड से किया था वो उस आंख में पानी आया। हाउ मेनी हैव सीन दिस प्रोसीजर? किसने मिस तो नहीं किया? सीन इट? यस, wave your hand if you've seen this. Oh my god. Okay, great. So अगर जब हम कर रहे थे उस दौरान there will be some small membranes which will be rubbing over this area, जिसके कारण हमारी आंखों में आंसू आएगा। That's okay. It's like you are allowing this naitra area to purify. Now, because ये रबर है फिर भी इजी था, सूत्र में थोड़ा सा मोटा होने के कारण टफ है, मतलब डिफिकल्ट है, बट दैट इज मच मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सूत्र सबसे बेनिफिशियल है। दिस इज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट रिड ऑफ दैट फियर ऑफ पुटिंग इनसाइड। फाइन, लेट मी डू इट विद द अदर साइड। यस, दीपिका जी भी कर रही है, वेरी नाइस। कर लीजिए। Okay, now I can see that there is a lot of mucus and मतलब ऐसा इतना भी mucus नहीं है, but फिर भी I can feel that moistness which is stuck over my rubber knee. Okay, और आंखों से आंसू शायद आप देख भी पा रहे हो, मैं तो फील कर रही हूँ अंदर से। I'm sure दीपिका जी भी वैसा ही एक्सपीरियंस फील कर रहे होंगे। हाँ, after your practice is done, remove whatever phlegm and mucus which comes out, जो भी अंदर का बलगम है छिपा हुआ था वो moist हुआ, allow it to pass out and do not forget to repeat Jalaneti again. क्यों? because यहाँ पे हमने एक प्रकार से कोई अलग foreign element डाला। complete the practice with the Jalaneti at the end. Put the nozzle inside. हाँ, another thing, जब हम रबर नीति करते हैं मुंह हमारा खुला रहता है क्या? खुला रहता है। जैसे ही फील होता है that yes, rubber is passing out here, जो कैथेड्रल है वो यहाँ तक पास हो रहा है, ऐसा फील होता है अंदर से, then you allow your 2 fingers कैंची की तरह उसको बाहर ऐसे निकाल। Okay, so maybe next time we can try. Allow one nostril to close it properly.
दूसरी साइड से जल नीति को करने की विधि इसलिए है एंडिंग नीति, क्योंकि सूत्र के दौरान अगर मान लो कोई पार्टिकल अंदर रह जाएगा तो वो भी बाहर हम 10 पार्टिकल को निकाल देते हैं। Allow the process of sinus activation to get started. Use your 2 index fingers to press over the 2 sides in the clockwise. दोनों हाथों से अपने यहाँ में जो हड्डी है which is actually storing the sinus cavity near it, so allow it to release and allow the mucus to melt away. Great. Finally, and we are done. अगर मैं आपको दिखा मतलब if I had option I would show you कि भले हमें लगता है कि हमारी नाक बड़ी खुली है, मतलब there is no mucus, but still mucus तो होता ही है and it is necessary to clean it up ताकि फ्यूचर में कोई बुखार, सर्दी, जुकाम ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बुखार हमें आना ही चाहिए, मतलब इट इज गुड प्रोसेस दैट बुखार जुकाम आता है। Why? They are happy diseases. Why is it said so? Because इस माध्यम से अंदर के विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाते, right? But then you know it कि बुखार, सर्दी, जुकाम कितना ट्रबल देती है अंदर से, मतलब we feel tired, gloomy, वीकनेस वगैरह वगैरह। तो अगर हम ऐसे अभ्यास करते हैं जल नीति, सूत्र नीति, तो 5 मिनट में वी आर क्लीन एंड वो सप्ताह में एक बार ही करें, डेली नहीं। ओके, मतलब जल नीति तो फिर भी कर सकते हैं, बट रबर या सूत्र सप्ताह में एक बार काफी है। Fine. So I assume that we can get started with the next part, which is specifically going to discuss with respect to our somatic practices. So I would request everyone to come in Parvatasana. Yes, Parvatasana में आएंगे सभी. Allow your chest to arch. Exhale करें. सभी करेंगे एक्सलेशन। जिसने भी सूत्र नीति करी है अपने नाक को अच्छे से एक्सेल आउट करके बादाम तेल फिर से डालना है, 2-2 बूंदे या फिर घृतव, जैसे भी आपको सही लगे। Okay. So let us get started to do the practices which have been planned for now. सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अच्छे से एक्सलेशन किया है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और
शुरू करते हैं व्यायामों से। अपने दोनों हाथों को, अंगूठों को आगे रखें। Use your index to be pressed behind. Okay, just maybe females, because I think you might have used your earrings, they might be piercing you, but try to press this part. जैसे मैंने भी कान में बाली डाली है, but I'm allowing this part, the cartilage area to press. Okay, press it nicely. कान में बाली या फिर इयरिंग डालने का मेन सिग्निफिकेंस यही है कि हमारे इस जगह पे मर्म पॉइंट है, which is supposed to be beneficial for improving our cognition level. तो अभी हम प्रेस करेंगे. Let us get ready to do गणेश योगा. जिसको भी नी प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे. आप चाहे तो थोड़ा ऑल्टरनेटिव दूसरा अभ्यास कर सकते हैं. जिसको भी नी इश्यू है, they may do the forward backward movements, but जिसको लगता है that you are strong, then we'll get doing the practice of Ganesh yoga. Breathe in, श्वास भरे, breathe out, exhale down. Breathe in, breathe out, breathe in. बचपन में ये पनिशमेंट रहा करता था, बट अभी ये फायदा है कि हम अपने जोड़ों को अश्व की तरह स्ट्रांग रखें. हमारे जोड़ 100 साल तक स्ट्रांग रहे. आगे की जिंदगी किसने देखी है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट दैट आई डू योगा एवरी डे, ताकि 100 साल तक जी पाऊं. श्वास भरे, एक्सहेल डाउन, इनहेल, कंटिन्यू. ओके, कंटिन्यू. Continue. And release. दोनों हाथों को खोल दीजिए अच्छे से. Let us get ready to do the practice of sideward movement. Inhale, exhale down. Inhale, exhale down. Inhale, exhale down. Continue. Inhale, exhale down. Inhale, exhale down. Now why are we doing this? अगर हमने सूक्ष्म व्यायामों से अपनी साइड वाली मसल्स को एक्टिवेट नहीं किया तो आगे के प्रेसेस कैसे कर पाएंगे? It's important to warm the sides very efficiently. Great. दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कर लीजिए. Interlock it nicely. Place your left foot towards left side. Breathe in deeply. Exhale down. Hold the position. Hold. Let me check. देखते हैं. करिए. करिए. Okay. ओके ओके. रोहित जी का ऑलमोस्ट लग गया है छाती. मोहिनी जी कैमरा अच्छे से रखिए. मे बी यू आर डूइंग, बट कैमरा अच्छे से रखिए. सो जब हम जैसे आई कुड सी आजाद जी एंड सम अदर्स वर फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट. इवन मंदना जी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी, राइट? सो इन सच केस क्या करें? अलाउ योर बोथ आर्म्स टू फर्स्ट गेट डाउन. सभी इस अभ्यास को करेंगे, ठीक है? What you allow your both palms to slide across shin bone, hold it properly and get down. Try lengthening the upper area, hold the position. श्वास भरिए. दूसरी साइड. Exhale down. Hold the position. Hold. 10, 9. अब लग रहा है ना? Yes, good. घुटना सीधा, घुटना सीधा. Yes, very nice शिवाजी. आजाद जी घुटना सीधा. Yes. जब भी हो रहा है अपने आप से अगर थोड़ा बहुत बेंट होता है तो फिर भी कर लीजिए.
सुमित जी, अरविंद जी, रोहित जी, संध्या जी, शिवा जी, बहुत बहुत सुंदर। माधवी जी करिए, सीता जी बहुत अच्छे, वंदना जी गुड, ग्रेट, मोहिनी जी करा, यस वेरी नाइस। पूनम जी, बस कैमरा अच्छे से रखिए आप। पूनम, डॉक्टर पूनम जी, कैमरा अच्छे से रखो ताकि आप प्रॉपर मुझे दिख पाए। यस वेरी नाइस। नीतीश जी बहुत सुंदर, आभा जी बहुत अच्छे। होल्ड द पोजिशन मीनवाइल, शोभा मैम वेरी नाइस, ब्यूटिफुली डन, great. So let's get ready to now do that similar practice with the same foot जो अभी हमने किया था, but only thing हाथों को इंटरलॉक करके नीचे जाने की कोशिश। श्वास भरे, वापस, get down. Now get ready to involve the movement of allowing thighs to compress down, come up. So दोनों हाथों को नीचे लाना है, श्वास भरते हुए ऊपर आए। Okay, get down, come up, get down, come up, get down, come up, get down and start with the next अभ्यास, जिसमें हम अपने दोनों हाथों को पीछे कमर पर रखेंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाए, एक्सहेल करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, एंड लेट्स गेट रेडी फॉर द वॉल। सो दीवार को अपना सहारा बनाते हुए अब हम करने वाले हैं certain practice to improve our back bending. So what are we going to do? Place your both fingertips, सभी दोनों fingertips को अच्छे से जमीन पर रखिए. Use your knee to get pressed onto the floor, onto the wall. अपनी घुटने को जमीन पर लगाना है. श्वास भरते हुए पीछे. One second. So it's not really the knee as such, but thigh. अपनी जंघा को जमीन पर दीवार पर सटाते हुए अपनी क्षमता अनुसार पीछे जाना है. अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है. We are not supposed to get worried because हाथ हमारे अच्छे से होल्डेड हैं. Exhale, come back. Breathe in. Exhale, come back. Okay, great. करेंगे फिर से, बट दूसरे प्रैक्टिस को क्या करना है? यूज योर लेफ्ट फुट टू बी ब्रॉट अक्रॉस द फ्लोर. यूज द टू फिंगर्स. अपने हाथों को अच्छे से दीवार पर या कहीं पे भी आपको प्रेस रखना है, या फिर ऐसे, अगर ऐसे कोई क्रीज है, बेस्ट. अलाउ योरसेल्फ टू बेंड मोर by placing one leg behind the other one bended. We are allowing a nice arch to happen, thereby allowing our spinal cord to get stretched. Spinal vertebral area जो है उसमें हम एक अलग सा खिंचाव ला रहे हैं श्वास के दौरान. Breathe in. Exhale. दूसरे साइड से. करते रहे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर.
So you must have realized that this part is still, अभी भी शायद आपको फील हो रहा होगा tingling sensation या वो stretch. अब इस अभ्यास को हम drill करेंगे with the next training, which is going to be beneficial for not only involving our spine to get flexible, but also to improve its elasticity. Fine. So get ready to come on in the standing position. सभी खड़े हो जाएंगे. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखें, आंखें बंद, सूर्य का ध्यान. ओम ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्तिनी नारायण सरसिजा सरसन्निवृष्टः केयूरवांग मकरकुण्डलवानुकिरीटी हारी हिरण्यमय बफूर वृतशंख चक्रहार. ओम मित्राय नमः. लंबा श्वास भरे, दोनों हाथों को बाहर से खोल के अंदर की तरफ लाते हुए join your both palms together and get into the namaskar position. ओम मित्राय नमः. First posture होने के बाद allow the arms to go behind and experience that same effect what we had experienced a while ago. Allow yourself to make a nice arch, pushing the pelvic area forward and thereby allowing the arms to go behind. त्रीणी, exhale, length in the arms. जितना हो सके अपनी हाथों को बिल्कुल लंबा लंबा करते हुए अपनी हथेलियों को जमीन पर ले जाना है, hold रहना है, like be in the steady position. त्रीणी. Chatwari, bring the left foot behind, thereby allowing both arms to be besides the right foot. Nazar samne. Pancha. Sorry, hold the position. Chatwari, fourth position. Pancha. Parvatasana, where we are allowing the arch to happen. अपने सिर को जमीन पर लगाने की कोशिश करें. Hold, hold, allow forehead to get onto your floor. Hold the position. Shivaji, push your shoulders down. Try pushing your shoulders down. Very nice, Vandana ji. Madhvi ji, बहुत अच्छे. सीता जी कैमरा अच्छे से रखिए. बाकी आप अच्छा कर रहे हो. Very nice. Hold. Beautifully done by Sumit ji, Abha ji. Very nice. Pooja ji, बहुत अच्छे. निधि जी, अप्रतिम. Hold, 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 hold. Sandhya ji, बहुत अच्छे. Let the process get its effect done. या तो मैं नंबरिंग करती या तो मैं देख रही हूँ, है ना. Please hold the position. Hold. गुड़िया जी बहुत सुंदर. पूनम जी बहुत अच्छे. बाकी सभी क्या कर रहे हैं? ऐसे कैमरा बंद करके देखने में मजा आता है. बहुत अच्छे. Great. Now from here, drop your both the knees down. घुटनों को जमीन पर रखें, छाती, ठुड्डी जमीन पर. श्वास भरे, भुजंगासना. Try arching the spine. अपनी कमर में एक खिंचाव महसूस कराते हुए स्पाइन को आर्च करें. होल्ड द पोजीशन. दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, मतलब अंगूठे मिले हुए. भले आपके हील्स आउटवर्ड हो, बट पंजे मिले हुए. एक्सहेल, पर्वतासना. Now bring the left foot forward in line with your leg. दो हाथों के बीच में लाना है. नजर सामने. The other one back to the position. Exhale down firmly. Breathe in. Get behind and Namaskar Sthiti. Fine.
ॐ रवये नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ॐ सूर्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ॐ भानवे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ॐ खगाय नमः। एकम, द्वे, प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप योर विंडोज ओपन। सूर्य प्रकाश डायरेक्टली ना मिले तो इनडायरेक्टली तो मिलना चाहिए। जैसे इफ आई हैड एन ऑप्शन, आई वुड हैव डन ऑफ बाहर, आउटडोर, बट बारिश के कारण गीला है बाहर, तो इसलिए। द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ॐ पूष्णे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही ना? ऑल वेल। जब जब भी लगे कि स्पीड फास्ट हो रही है, अपने आप को भी उस मोड में लाते हैं, इस भाव के साथ कि हम अपने शरीर को और सुदृढ़ बनाना है, हमें उसे ट्रेनिंग देनी है, राइट? सो वंस अगेन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम, द्वे, बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़े, हस्तोत्तानासन में। त्रीणि, exhale completely. चत्वारि, पञ्च, षड्,
सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम मरीचये नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम आदित्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओके दीपिका जी, आपके डेट है ना, पीरियड्स है आपके, आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो क्यों किया आपने जल नीति, रबर नीति? मैंने बताया है पहले ही, खून आना तब होता है कि जब आपके नाक बहुत सेंसिटिव है। सेकेंडली, आपने असावधानी से किया हो, अगर जल्दी जल्दी में, जब मैं कर ही रही थी तभी आप करना स्टार्ट कर दिए थे। एक बार पहले देखना चाहिए पहले, है ना, इसलिए मार्गदर्शक होता है कि आप पहले देख लो और फिर करो। सेकेंडली, पीरियड्स के दौरान नहीं करते हैं, वायोलेट मत कीजिए, नहीं तो फिर वो डर लगा रहेगा, है ना, प्रैक्टिसेस के प्रति। ठीक। हाँ, सो हाँ मोना जी, आप सेम पैर को पीछे आगे पीछे ले जाना, बिकॉज होता ये है कि जब स्टार्टिंग में जो पैर हम पीछे ले जाते हैं, बाया पैर अगर पीछे ले गए तो प्रेशर कहाँ पे फील होगा? इन द हैमस्ट्रिंग ऑफ आवर राइट। पर जब हम वापस आते समय बाएं को ही आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर फील होगा बाएं पे, क्योंकि राइट तो पीछे है। So it will be doing its enough equal amount of pressure to be done in both this directions. तो हमें एक कोई प्रोसीजर में स्टिक होना है। जैसे अगर आप वाम दक्षिण वाम अश्वसंचालन कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट पहले रख रहे हैं आगे, that will make sure that you allow your pressure to be experienced around the thighs equally. मतलब आप शुरुआत वाम से करना और उसी को फिर बाद में वापस ला, so that will do serve its purpose. ठीक है, फाइन। कौन सा कर रहे थे नेक्स्ट? ओम अर्काय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम भास्कराय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि,
पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। फाइन। ओके, सभी दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिग्निफिकेंस ऑफ सूर्य नमस्कार। आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने। आदित्य भगवान को नमस्कार करते हुए जब हम प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम, आयु एज, प्रज्ञा कॉग्निशन, intellect, bala strength, virya vigor, all is being bestowed along with the peace of mind and magnificence on the face. Tejah te shanta jayate. With all this being bestowed, let us now finally get ready to come in a comfortable position of shavasana for a few minutes. Allow yourself to lie down perfectly, grounding onto the body, and let us have a deep long breath in. Okay, दीपिका जी, अगर आप ही आया है, जैसे मैंने पहले बताया, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप नाक में चाहो तो बादाम तेल डाल लीजिए, या फिर कोकोनट ऑयल विल आल्सो बी डन फॉर नाउ, जस्ट टू हील दैट एरिया। वो नर्व्स है, जैसे कॉम्प्रेस हो गए तो वो शायद आपको आया होगा, बट अगर हम प्रॉपरली करते हैं सावधानी पूर्वक तो नहीं आता। ओके, आंखें बंद करते हुए अपने आप को बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रखें। गेट योरसेल्फ कंफर्टेबली रिलैक्स्ड, ब्रीद इन डीपली, breathe out completely. Breathe in deeply, breathe out completely. Breathe in. मानसिक अवलोकन करते हैं, हर श्वास के साथ एक मनस लेवल पे उच्चारण रखते हैं। ओ Continue breathing in. श्वास भरे, भाव करे कि शरीर में ओज, बल, तेज, वीर्य अवतरित हो रहा है। सूर्य की ऊष्मा नाभि के मध्य भाग पर मणिपुर चक्र की जगह पर गिर रही है, पोषित कर रही है। श्वास भरे फिर से और प्रश्वास करें। श्वास भरे फिर से और प्रश्वास करें। फिर से श्वास भरे, let us get ready to do the practice of next अभ्यास, जिसका मेन मकसद है कि हम अपने शरीर के यौवन को हमेशा बनाए रखें। So I would request everyone to turn towards your left side. बाई करवट लेते हैं, अपनी दोनों घुटनों को बेंड करके आराम से बैठ जाते हैं in the सुखासन। ओके, करेंगे शांत स्वरूप रूपी केवली प्राणायाम का अभ्यास। पैरों को किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप स्थितबद्ध रखिए, या तो स्वस्तिक आसन में बैठ सकते हैं, अलाउिंग योर सेल्फ टू गेट कंफर्टेबली इरेक्ट। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन
Ensure we keep a nice, comfortable, spinal, erect position. दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, where the index finger is being pressed by the thumb. Breathe in. And let us get ready to do the practice of calm, composed breath flowing in through both the nostrils. जैसे आपने आज जल नीति करी है, उस दौरान आपने महसूस किया होगा that the nostrils have opened up well. जैसे आगे जाके आप जब रबर तो बहुतों के पास नहीं होगा, so they might have not done. आगे जाके जब आप रबर नीति का भी अभ्यास करोगे सावधानी पूर्वक, then you will experience that opening of the nostrils much more better. You will realize that there's a nice clean passage which has been obtained to allow the fresh air to go inside and fresh air to go in through the brain area and thereby flush out the toxins from the nostrils in the form of carbon dioxide. Breathe in. जिसमें कोई आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे, बहुत ही काम कंपोज्ड फॉर्म में अपने आप को बिल्कुल शांत स्थिर रखेंगे कुछ समय के लिए, केवल एक ओंकार की भांति ध्यान मग्न रहे. कंटिन्यू. Let us get ready to join both palms together and let us allow the chest area, especially the sternal notch area, to get inside. So thereby, with the help of allowing the abdomen to go inside, we are allowing the heart center to also beat. So यहाँ पे thymus gland है, which is known to be associated with the T cells, immune cells. इसको हमें नमस्कार मुद्रा में प्रेस, तो जब भी हम किसी को नमस्ते करते हैं, हम न केवल अपने हृदय को इग्नाइट लाइक पुश कर रहे हैं या फिर स्टिमुलेट कर रहे हैं टू मेक द सामने वाला पर्सन रिमेम्बर ऑलवेज, but it also helps to stimulate our inner heart center area and the thymus gland area, जिसको अंतस्त्रावी ग्रंथि में गिना गया है, thymus gland. So let us take a deep long breath in. Start. Great. श्वास भरे. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथा चानाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था,
अनाथाच्या नाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो. प्रभु तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू. तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान. तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया. ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम. Rubbing both palms together. Placing them over the eyes. You slowly open up. Okay. कमर को थोड़ा सा मूव करिए. And yes, we are done for some few questions to take over. अच्छा, आपको अभी के सभी प्रैक्टिसेस के प्रति कोई भी क्वेश्चंस है पूछ सकते हैं. मैंने उसको निकालने में पार्ट किया, इसलिए उसमें से ब्लड आया. हाँ दीपिका जी, और आपने मास्टर्स किया है ना योग से, तो मैं भी निश्चिंत हो गई. तो आपको पता है, तो आई रेस्ट अश्योर्ड. बट एक्चुअली हुआ क्या आया ना. यस. हाँ, another thing, जब भी अगर मान लीजिए एक मिनट पहले तो यहीं से तो आवाज आ रही है, which is disturbing. देखिए अश्विनी जी, शांत शांत शांत, आवाज आ रही. So as I was saying, अगर हमारे नासिकाएं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, then you will have certain symptoms of it. What would they be? कि पहले भी अगर आप जल नीति करते वक्त itching issue आता है, so इस कंडीशन में firstly make sure that every night आप बादाम तेल या फिर घी से अपनी नाक को पहले स्ट्रॉन्ग करो. बिफोर द क्लास इवन आई वाज लाइक, बिकॉज मैंने रबर नीति आई गेस मास्टर्स में किया था, उसके बाद आज कर रही हूँ मैं, क्योंकि जल नीति तो हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, बट रबर नीति इज यूजुअली नॉट सो फ्रिक्वेंट इनफ. बट अगर हम ध्यान से करेंगे आराम से हो जाएगा. स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनको सिर दर्द का इशू है, जिनको माइग्रेन पेन होता है, या फिर यूं कहे तो जिनको फ्रीक्वेंट हेडेक रिलैप्स होता है. दैट इज यूजुअली बिग कॉज ऑफ नेजल कॉन्जेशन. सो इस कंडीशन में रबर नीति इज वेरी गुड. और कोई क्वेश्चन है? मतलब किसी को अगर कुछ पूछना है. अच्छा, 1 second, लेट मी आस्क एवरीवन टू अनम्यूट. हाँ, अब नेहा जी, नेहा जी, मैंने पहले कहा था मुझे टर्बिनेट्स का है इशू, तो दिस कंटिन्यूअस आई कैन डू फॉर 1 वीक और उसके बाद योगा सेशन अटेंड करूं. जल नीति राइट? जल नीति रबर तो मेरे पास है ही नहीं है. कर लीजिए. हाँ, वो तो मुझे पता है कहाँ से आप ये 10 रुपए की सिंगापुर में लाओगे, बट चेक अगर मिलता है तो देख लीजिए, वहाँ पे हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे योगा सेंटर्स भी होते हैं ना, दे माइट हैव. आई ट्राइड लेकिन नहीं है. नवंबर में कमिंग इंडिया, तो तब मैं करूंगी.
मैंने ठीक है, 3 मैं ये साल बोल रही पहले थी किया जर्नी था की नेहा। 1 हफ्ता कंटिन्यू करके कर लीजिए आपका योगा सेशन अटेंड कर सकती हूँ ना 1 वीक। हाँ बिल्कुल। इवन रॉन हैड दिस सीवियर नेजल कंजेशन इश्यूज, बट उसने उसको वो अस्थमा के वो भी यूज करता था, he has the pump and all medicines used to take, but after a proper practice of 1 week he left over, मतलब उसने वो सारा छोड़ दिया and he is now fallen in love with Nethi, does it every day before the class starts or sometimes after the class ends, but आप कर prior सकते हैं करिए एवरीडे because वीकेंड हाँ जर्नी थी एवरीडे कर सकते हैं। जलनीति एवरीडे भी कर सकते हैं, बट यूजुअली होता ये है कि आप टाइमिंग्स का ध्यान रखें, जैसे सुबह का समय बेटर है। बाकी अगर आप कहीं बाहर से आए हो, खाली पेट हो, बहुत पोल्यूशन रहा हो तो भी कर सकते डेली मतलब आपके सेशन के पहले करके फिर मैं हैं। अटेंड करूंगी आपका हाँ सेशन। हाँ, वैसे भी वहाँ पे तो सुबह अच्छी खासी हुई होती है, कर लीजिए उस टाइम, पहले करके आ जाइए क्लास। ओके डन। मैंने भी नेहा मैम 3 फोरहेड में साल भी पहले किया था डिप्लोमा में। फोरहेड में भी जाता है ना, जब एक्सलेशन करते हैं तो फोरहेड में जाता है थोड़ा पानी, जब हम बाद में एक्सलेशन करते हैं फोरहेड में जाता है ना, कौन कह रहा है? फोरहेड में जाता है ना मोना दिमाग जी, में, हाँ मोना जी, एक मिनट फोरहेड में जाता है ना पानी थोड़ा, फोरहेड जब में हम जाता है, एक एक्सलेशन मिनट, होल्ड ऑन जब सुनिए, एक्सलेशन शांत करते हैं। शांत। मोना जी पहले तो कैमरा अच्छे से रखो, मैंने आज तक आपको नहीं देखा, आप हर बार मुझे फैन ही दिखाते हो कैमरा कुछ। हाँ ओके, सो सेकेंडली जब हम बाकी सभी प्राणायाम कर लीजिए आराम से बैठ के। हाँ तो अगर हमारे देखिए, इट्स ऑल अ गेम ऑफ ओरिएंटेशन, when you are allowing the water to pass from one to the other, how will it go to the forehead? थोड़ा बहुत चला जाता है, that's okay, nothing to worry, but नहीं, जब एक्सलेशन करते हैं, जब बाद में एक्सलेशन करते हैं, एक्सेल करते वक्त नहीं, मैंने घी डाला था नोज में, उसके बाद वो जब एक्सलेशन किया तो वो दिमाग में गया। घी, आप घी की बात कर रहे हो, घी ब्रेन में जाता है कि कह रहे हो? अब क्या गया पता नहीं, लेकिन ब्रेन में फील हुआ स्टिंगिंग। नथिंग टू वरी, डोंट वरी। अगर सी जब हम बादाम तेल या फिर घी घृत भी डालते हैं, तब हम मेजर हमारा टारगेट भी यही होता है कि वो पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, ताकि वो क्लेंस हो। बाकी जब आप जल नीति करते हो, ध्यान रखो इसमें सॉल्ट है, कॉस्टिक सोडा, राइट, सॉल्ट, so always make sure that you do the water to pass from one to the other. Why are we using salt? ताकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहे और आपको इचिंग ना हो, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पानी यूज करेंगे तो वो काइंड ऑफ इरिटेशन होगा। करके देखना, आप फिर मुझे कंप्लेन करोगे, अरे बहुत इचिंग हुई है। एक बार मैं क्लासेस के दौरान बाकी सामने बता रही थी कि सॉल्टी वाटर यूज करो, बट अनजाने में मैंने नॉर्मल पानी लिया था एंड ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अंदर से मुझे इचिंग हो रही थी। बट यस, ऑलवेज प्लीज मेक श्योर दैट कि आपका पानी आंसू जितना खारा हो और अंदर की बॉडी टेम्परेचर जितना गर्म, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। सेकेंडली जब हम घृत नीति या फिर क्षीर नीति यूज करते हैं, दूध वाली, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर दोज हु आर हैविंग पित्तज एंड वात प्रॉब्लम्स एंड पित्त प्रॉब्लम्स। बाकी जिनको कफ है वो जल नीति या फिर सरसों के तेल नाक में रात को सो के डालिए, यू विल फाइंड रियली बेनिफिशियल। जैसे हमारी माधवी जी, आप बिल्कुल नाक में कच्ची सरसों का तेल, कच्ची घानी का जो तेल रहता है, कोल्हू का जो तेल है, वो यूज किया कीजिए। अलाउ, आपके लिए बादाम तेल नहीं है, आपके लिए अणु तेल है और सरसों वाला तेल गरम करके थोड़ा, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मुझे कहा हाँ, मैंने आपको कहा आप बादाम तेल यूज मत कीजिए, आप अणु तेल यूज कीजिए। अणु तेल आपको पतंजलि में ही मिल जाएगा। अणु तेल यानी क्या होता है? अणु तेल इट्स अ रेमेडी स्पेशली फॉर दोज हैविंग nasal problems, जिनको कफ है, दमा है, अस्थमा प्रॉब्लम या फिर पॉलिप्स इशू, इनके लिए बेटर। ओके, ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? प्रेम, हमारी गुड़िया जी, yes, बताइए। दुग्ध नीति भी गुनगुनी करके दूध लेना है? दुग्ध नीति, हाँ, तो दुग्ध नीति में जैसे मान लो आपने हाफ कच्चा दूध या धारोष्ण दूध जिसको कहते हैं,
और हाफ वाटर, और वो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मतलब ऐसे समझ लीजिए आपने थोड़ा गुनगुना किया, पानी और दूध दोनों को गुनगुना किया, और वो जैसे आप सह पाए जितना, वो यूज, नमक नहीं डालना है। नेहा जी, वो जो वॉल के सपोर्ट से जब वो पीछे जाते हैं ना कर्व, तो उस वक्त सर पे बहुत हेवीनेस फील होता है और मैं और पीछे नहीं जा पाती हूँ। हाँ, तो इसका मतलब है आपने प्राणायाम एक्स्ट्रा करना चाहिए। ये वही है कि किसी किसी को जैसे आप नॉर्मल उष्ट्रासन करते हैं तभी भी थोड़ा कुछ जनों को इशू होता है। So that means you need to do extra time to devote for pranayam. प्राणायाम करके देख लीजिए continuous for a week and then tell me whether you are feeling that same effect or not. You will feel that instantly, क्योंकि usually होता यह है कि हमारे blood circulation जब अचानक से brain तक ऐसे पहुंच रहा है, we feel sometimes dizziness, uneasiness. तो इसका मतलब है कि प्राणायाम को स्पेसिफिकली कोई स्पेशल नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं जी। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बताइए। तो मुझे पीछे जाने में यही दिक्कत होती है। हाँ, आपको पीछे जाने में यही दिक्कत होती है, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ब्रेन पर फोकस करते हुए मैं वो दिक्कत नहीं होती है, यार नाभि की दिक्कत होता है बस। कहाँ पे दिक्कत होती है? कहाँ पे? नाभि पे? नाभि के नीचे। नाभि के नीचे? नाभि के नीचे जब आप बेंड हो जाते हो तब? हाँ, तो वो खिंच रहा है और आपने कहा है ना मुझे किडनी एरिया इशू, तो शायद इसलिए। बाकी आप ध्यान पूर्वक करोगे, you'll be able to do it much better. हमेशा आप उस जगह पर ध्यान देके करना जो आपको वीक लगता है। हर किसी का अपना एक वीक एरिया होता है, बट उसको स्ट्रेंथन करना हमारा मेन ड्यूटी है। सो एनी टाइम यू फील एनी डिस्कम्फर्ट, pranayam always has a solution in it, hidden inside it. These practices are a doorway to make your pranayam practice more better, है ना? तो जल नीति हो गई, सूत्र नीति हो गई, या फिर धारणा, या फिर इवन अलग अलग आसनास भी हमारे अंदर के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि प्राणायाम का इफेक्ट और अच्छे से मिले। तो यस मैम, प्राणायाम लेकिन 20 मिनट से ज्यादा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगातार करना है। टेक सम टाइम आउट, टेक सम ब्रेक, देन डू इट। आराम से ध्यान रखो कि आप कोई अच्छी सी खिड़की खोल के कर रहे हो, या फिर यूं कहे तो कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन के कर रहे हो। इन अ शॉर्ट वाइल, मैं अभी प्रोसेस में है, एक छोटा सा वीडियो भी बनाऊं। मैनी हैड आस्क्ड मी कि जो प्राणायाम करते समय आप बोरियत ना फील करके आराम से कर पाए, तो दैट वुड हेल्प इन फ्यूचर में। सो ओके, तो इससे कि आप अच्छे से कर भी पाएंगे और मन भी लगा रहेगा, और आप कंटिन्यूटी में उसका रिजल्ट देख पाएंगे। रबर नीति पतंजलि चिकित्सालय मिल जाएगा क्या? रबर नीति आपको पतंजलि चिकित्सालय में मिल जाएगा। आप कहाँ पे रहते हो? मुंबई? नहीं, यूपी झांसी। यूपी में तो बहुत सारे योगा के इंस्टीट्यूट्स हैं। मतलब आपको यूपी के नीतीश जी हैं क्या क्लास में? नीतीश जी कहाँ पे मिल जाएगा? झांसी। अच्छा, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। सो झांसी में कोई योगा केंद्र है क्या नजदीक? नहीं तो फार्मेसी में भी मिल जाएगा आपको जी। पतंजलि चिकित्सालय तो है, लेकिन वहाँ मिलता है कि नहीं? पतंजलि चिकित्सालय में चांसेस कम है, नहीं मिलेगा आपको। पतंजलि के जो मेन पतंजलि चिकित्सालय हरिद्वार, वहां पे मिल जाएगा, बट ये नॉर्मल पतंजलि चिकित्सालय में नहीं मिलेगा। अच्छा, ऑनलाइन फार्मेसी में मिल सकता है। ऑनलाइन ऐप है, उससे मिल जाएगा क्या? पतंजलि का ऐप है। 10 रुपए की सूत्र रबर को आप ऑनलाइन मंगवाओगे, चार्जेस ही 60 रुपीज के लग जाएंगे। देख लो, वैसे भी इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है। ये तो मच बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू स्पेंडिंग योर लॉट्स ऑफ मनी इन द हेवी एंड हाई एंड मेडिसिन। सो हाँ, ले लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा डेफिनेटली। अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी मंगवा लीजिए। सूत्र नीति बोल रही थी, वो कपड़े का आता है, वो कैसा आता है? सूत्र नीति, हाँ, वो बस इतना ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट 3, 4, 5 नंबर के आते हैं, जिसमें से सबसे छोटा वाला लेना, पतला वाला, क्योंकि जो मोटे होते हैं दे आर वेरी टफ टू गेट इनसाइड। तो इनिशियली तो आप छोटा वाला ले लो। तो वो कहाँ मिलेगा? वो भी वहीं पे ऑनलाइन, या फिर आप पतंजलि
वाटर मिलेगा या तो फार्मेसी में देखो या फिर मैम, जो भी एक- होगा कि शॉप्स है जैसे जो ट्रेडिशनल जल नीति पॉट वगैरह बेचते हैं वहां पे मिल जाएगा। नया जी डाउट है मेरा, और फिर बारिश यहाँ रुक गई है तो मैं निकलूंगा। एक मेरे पास में हाँ। ना 1 साल से ना कैथरेटर रखा हुआ है, मैंने एक ही बार यूज किया था लास्ट ईयर। सो आई वांट टू आस्क के इसे यूज कर सकते हैं बॉयल करके या फिर नहीं कर सकते? ये आपका कितना मोटा है? थोड़ा सा मुझे ज्यादा ही मोटा लग अरे रहा है। ये तो मैं कर लेता हूँ आराम से इजीली अंदर पहुंचा के, बस दंड है क्या थोड़ा वो? सा दंड बाहर दौती, दंड दौती। यस यस यस। मैं तभी सोच रही हूँ इतना दंड दौती आप यहाँ से थोड़ी निकालोगे। तो जो अभी अश्विनी नहीं जी यहाँ दिखा से रहे हैं that is निकलेगा। to be, हाँ वो माउथ से ही लेना होता है, मुंह से। तो आप यूज कर लीजिए थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में ट्राई करना ताकि वो क्लीन हो जाए, ज्यादा गर्म नहीं तो वो पिघल जाएगा, वो रबर है वो। हाँ वो तो गर्म करके ही जाएगा, लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि जैसे 1 साल हो गया, मोर देन 1 ईयर में बोलते हैं कि कुछ इन्फेक्टेड हो जाता है समथिंग, तो मुझे लगता है कि इसको यूज कर सकते गेट अ न्यू वन, गो फॉर इट। अगर आपको नजदीकी नहीं मिल जाता है तो ले लीजिए, ज्यादा नहीं लगता है कॉस्ट इसमें। और नहीं तो फिर डोलिया पुस्तक भंडार तो जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो वहीं पे हो देहरादून में, हरिद्वार हाँ देहरादून, पास में ही ले है, लीजिए, ज्यादा दूर नहीं, वहां से ले आऊंगा। ले लीजिए। थैंक यू फॉर द Because वंडरफुल वैसे भी सेशन टुडे। रबर तो अच्छा होता ही नहीं और ज्यादा लंबा है तो उसकी फिर लॉन्गेविटी भी होती है रबर अपने तो ये आप। वाला है, बहुत हल्का सा है और बिल्कुल ब्यूटीफुल है, तो आराम से इजीली हो जाता है। आप जैसे दिखा रहे थे मैं सोच रही हूँ कि इतना मोटा है बट ये दंड दौती मैं नए दोनों में जनों को डिफरेंस मैं है, बता रही हूँ, दोनों में न्यू डिफरेंस है ना, मेंबर्स देखो। हाँ। मुंह से डालने वाला है जो अभी अश्विनी जी दिखा रहे हैं वो अलग नहीं है। मेरे पास दोनों है मैम, नॉस्ट्रिल में भी डालने का है और अच्छा दोनों है आपके पास। हाँ तो बिल्कुल आप नया ही ले लीजिए, इतना अच्छा आप सौभाग्यशाली है, हरिद्वार में है, ले लीजिए नया वाला। और ठीक है? एक और चीज थी, एक ये वाली जो धोती है, इसको तो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि मेरे ख्याल से वैसे मैंने यूज नहीं करी, यही मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट लगती है, जो आज तक मैंने मास्टर्स में भी यूज नहीं कर पाया इसको मैं। इसका बड़ा डर लगता है। धोती एक बार यूज करने के बाद हम बेचते तो नहीं थे, मतलब डिस्पोज तो वो नहीं तो करते थे। यूज नहीं होना चाहिए। एक बार यूज करने के बाद आप अच्छे से गर्म पानी में उसको वॉश कर लीजिए। कपड़ा जैसे हम वॉश करते हैं, थोड़े से हार्श केमिकल वाला साबुन नहीं, नॉर्मल, या तो आप ऐसे यूज कर, हाँ बिल्कुल सॉल्टी वाटर इज अ डिसइंफेक्टेंट। बट अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा म्यूकस है, then allow it to remain there for at least overnight salty water में, and then next day आप फिर उसको clean करके सुखा के सूरज की ऊष्मा लगा के फिर आप यूज कर पाओ। हम तो ऐसे यूज करते थे, हर बार कौन वेस्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन टुडे। थैंक यू। सुमित जी कब से आप हाथ उठा रहे हो? यस पूछिए, अनम्यूट। Yes, ma'am. तो I was able to do जल नेती, हाँ। कोई इशू नहीं हुआ, बट जैसे ही I tried रबर नेती तो बहुत छींक आई। हाँ शीखें आती है बिल्कुल, इट्स लाइक कोई फॉरेन एलिमेंट है तो विद्रोह करेगा अंदर से, इट विल रिवोल्ट। But I was not able to do, मतलब हाँ? I was not able to do, जैसे I was trying, तो वो वहीं पे ठीक आनी स्टार्ट हो जाती। हाँ मैं समझ गई, सभी को फेस करना पड़ता है। अभी मैं तो थोड़ी सी बिकॉज आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, आई हैव टू बी लिटिल बिट डेयरिंग इनफ टू डू इट, तो वो अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाकी जो भी नए अभ्यासी होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जो भी, तो वो छींके आती है, so that is nothing एक to और worry। चीज है, मैं वो बादाम ऑयल वगैरह वो सब रात में डाला नहीं था, हाँ जल नेती नहीं के बाद डालो, बिल्कुल डालिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अंदर के लाइनिंग को थोड़ा सा मॉइस्ट रखना जरूरी है ना। तो अच्छा वो आपका अंदर चला भी नहीं गया वैसे भी, क्योंकि अंदर जाके और ज्यादा छींके आने लगती है, और फिर आप क्या करते एक हेड यहाँ एक हेड अंदर है। मैम ऐसा होता है अगर एक बार डर हो जाता है ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। एक बार अगर डर हो जाता है ना कि मैं ऐसा करूंगा तो इसके बाद ऐसा होगा ना, तो बहुत डिफिकल्ट होता है करना। हाँ बिल्कुल वही बिल्कुल, सोचा सही था कि कहा अगर जी ने। बीच में इसलिए फंस गया ना, शुरुआत ही बहुत ही सही करनी चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो इम्प्रेशन अंदर फिर बना रहता है नहीं तो। और डर Actually, मेरा मैम, सेकंड टाइम था मैम, सेकंड टाइम मैंने किया था। फर्स्ट टाइम जब मैं डिप्लोमा कर रही थी तब किया था, मेरे पूरे बैच में केवल मैंने किया था। ओके नाइस। आज सेकंड टाइम किया तो वो निकालने में गड़बड़ हुआ, इसलिए ब्लीडिंग हुआ। बाकी आप तो बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस है ही आपके,
बस थोड़ी वही है, अगर हम सावधानी के बिना करते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं, तो कंप्रेशन के कारण खून आने के चांसेस, और वो खून देख के डर भी लग जाता है फिर। तो इसलिए जो करें अच्छे से करें, सावधानी पूर्वक करें, ताकि आप लंबे समय तक उसको कंटिन्यू रख पाए। इसमें हम कोकोनट ऑयल या जो घी होता है, गाय का घी, उसका यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, गाय का घी यूज कर सकते हैं, और आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज आई सेड नासा ही शीर्षो द्वारम, तो ब्रेन के लिए सबसे बेनिफिशियल बादाम ऑयल है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है देन यूज द बादाम ऑयल, और वो भी बालों वाला नहीं है। नहीं तो मुझे किसी ने पूछा था कौन सा, मेरी चाची है, शी वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि हाउ दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन टर्म्स ऑफ दिस हेडेक प्रॉब्लम्स। होता है ना कि हम समाज को सिखाते हैं, अपने अपनों को ही नहीं सिखा पाए तो क्या मतलब। सो चाची मुझे मेरी क्या बजाज आलमंड हेयर ऑयल ला के दी, so would that be done? So always make sure बादाम आलमंड हेयर ऑयल या फिर कोई भी आलमंड वाला यूज बिल्कुल ना करें, प्योर बादाम ऑयल ही यूज करें। हाँ, बादाम रोगन बिल्कुल, पतंजलि का बादाम रोगन आता है, नहीं तो किसी भी अच्छे आपको रिलायबल ऑथेंटिक स्टोर से आप ले सकते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, Thank you so much, ma'am. It was really nice. Yes. Anybody else have any issue? कोई किसी को फोबिया है कि कोई स्टंट हो रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ लीजिए। We have few more minutes, then we can take over. रबर नीति से खराटे दूर होते हैं, बिल्कुल खराटे दूर होते हैं। क्यों होंगे दूर? Because snoring is also an issue with respect to your nasal congestion. Somehow जैसे हमारे नाक अच्छे से खुलेंगे वैसे ही हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस और अच्छा होगा। तो रात में मुंह खोल के सोने की आदत छूट जाएगी, रात में मुंह से सांस लेने की आदत भी छूट जाएगी, खराटों की आदत कंप्लीटली बाय बाय हो जाएगी। आजाद जी पूछिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग प्राणायाम है। तो क्या ये मतलब किसी एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए या रैंडमली कोई भी प्राणायाम कर लेते हैं? जैसे कई सारे बताते हैं कि इस ऑर्डर में करें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो ऐसा कुछ है? आप प्लीज उसको बताइएगा। तो प्राणायाम का ऑर्डर यूजुअली बहुत सारे टीचर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ज्यादा एफिशिएंटली फिर उसको महसूस कर पाए। इट इज सेड यूजुअली नाक हमारी थोड़ी सी इनिशियली थोड़ी बंद रहती, जैसे आपने पहले देखा भी होगा जल नीति के दौरान, नॉर्मल पहले जल नीति जब की मेरा इतना अच्छे से जा नहीं रहा था, मतलब पास आउट नहीं हो रहा था, वो नल की धारा जैसे बह नहीं रही। बट जो ही मैंने रबर नीति करी उसके बाद तो नल जैसे खोल लिया हो मैंने, टैप लाइक दैट इट वाज फ्लोइंग। सो वही है, व्हेन यू डू सर्टेन प्रैक्टिसेस द नॉस्ट्रल्स गेट ओपनड अप मोर बेटर। तो शुरुआत में हम भस्त्रिका से स्टार्ट करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, 2.5 सेकंड श्वास लेना है, 2.5 सेकंड छोड़ना है। देन कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया के बाद जब आपके अंदर में वो अग्नि प्रज्वलित हुई है, जठराग्नि कहें या फिर योग अग्नि जो प्रज्वलित हुई है, उसको फिर बाह्य प्राणायाम से शमन करते हैं, या फिर केवली प्राणायाम भी कर सकते हैं जिसमें बहुत ही सटल रूप से करते हैं। फिर अग्निसार है, अग्निसार क्रिया भी एक बार मैं दिखाऊंगी। फिर अनुलोम विलोम से हम शिथिलीकरण की तरफ मुड़ते हैं। तो स्टार्टिंग ऑल दोस प्रैक्टिसेस व्हिच आर काइंड ऑफ इग्नाइटिंग द नॉस्ट्रल्स एंड देन एंडिंग अप विद दोस व्हिच आर गोइंग टू पैसिफाई द प्रोसेस आर बीइंग फॉलोड। सो प्रोसेस ये है कि आप पहले तो उत्तेजित करो फिर शमन करो। सो आई हैव आंसर्ड इट। थैंक यू नीरज जी। जी, anybody else? Okay, so next Sunday हम व्युत्क्रम क्रिया करने वाले। कि what is व्युत्क्रम? मुंह से पानी लेके नाक से बाहर निकालेंगे। मुंह से पानी लेके नाक से बाहर निकालेंगे। It is really nice, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस लोटा लाना है, खारा पानी रखना है, मतलब जैसा ही हम यूज करते हैं, और मुंह से पानी पीना है, नाक से बाहर निकालना है। ठीक है? So we'll see you everyone tomorrow, मतलब कल तो मिलेंगे ही, बाकी संडे भी अच्छे से मिलेंगे। Yes, anybody else? Done?
Clear? Can we conclude? See you all. Bye bye. Namaste. Thank you. Bye bye Neha ji. Good day to you. Bye. Good day. Thank you, Neha. Thank you.